Our esteemed chief guest, Srimati P. Jyoti Madhusudan Rao Garu, has arrived. The Guard of Honor is being presented by the NCC cadets of our school, belonging to the 4th Telangana Battalion, Sikh Village. Our esteemed chief guest, Srimati P. Jyoti Madhusudan Rao Garu, has arrived. The Guard of Honor is being presented by the NCC cadets of our school, belonging to the 4th Telangana Battalion, Sikh Village. A wonderful morning to our secretary and correspondent, Srimati P. Jyoti Madhusudan Rao Garu, General Manager, Mr. Upinder Ravi Sir, Academic Director, Mr. N. M. Augustine Sir, COO, Mr. Vijay Shankar Sir, our Principal.
As the national flag is unfurled, let us stand with pride and respect. Every generation has a role in making India an even better country. To share her thoughts on the significance of Independence Day, we now invite our head girl, Miss Vanshika, to deliver her speech. Good morning, respect Secretary and Correspondent, Srimati P. Jyoti Madhusudan Rao Garu, Augustine Sir, Upendra Ravi Sir, Vijaya Sankar Sir, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers, and my fellow students. Today, I don't want to begin by saying we are gathered here to celebrate Independence Day. Instead, I want to ask you a simple question. What does freedom mean to you? Is it the freedom to dream? The freedom to speak? The freedom to choose our future? For us, freedom may feel natural, but 80 years ago, it was a dream that millions of Indians fought and sacrificed for. Today, as we celebrate 80th Independence Day of India, let us pause for a moment and remember the people who gave us freedom we enjoy today. From Mahatma Gandhi's message of non-violence to Bhagat Singh's courage, from Subhash Chandra Bose's determination to the sacrifice of countless unnamed heroes. India's freedom was built on courage, unity, and sacrifice. But there is something important we should remember. Independence is not just a date in our calendar, it's a responsibility. Our freedom fighters did not sacrifice their lives so that we can simply celebrate with flags and sweets once a year. They dreamed of an India where citizens could live with dignity, where children could receive education, and where people from different religions, languages, and cultures could stand together as one nation. Today, our battles are different. We fight against ignorance, pollution, discrimination, poverty, corruption, and intolerance. And each one of us has a role to play. As students, we may think, what can I possibly do for my country? The answer is simple. Do your part and do it sincerely. Study not only to get marks, but to gain knowledge. Respect not only who are above you, but everyone around you. Keep your surroundings clean. Help someone who needs you. Stand up for what is right. Because the India of tomorrow is being created by choices we make today. So, on this 80th Independence Day, let us not only ask, what has India given to us? Let us also ask ourselves, what can I give back to India? Let us carry the courage of our freedom fighters in our hearts and the responsibility of citizens on our shoulders and the dream of a better India in our eyes. Let us not merely inherit the freedom they gave us, let us make it meaningful. Built on sacrifice, driven by courage, bound by glory. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you for those enlightening words, Vanshika. Now music has a way of bringing people together. When young voices sing for their motherland, the feeling becomes even more special. Our talented, confident and energetic class 4 students are all set to present a beautiful and captivating group song. Let's encourage them with a huge round of applause. भारत
that energetic group song, now let us turn our attention to a graceful and captivating solo performance. Dance is a beautiful expression of emotions, culture, and creativity. Our next performer, Kesar of Class 10C, is ready to mesmerize us with a wonderful solo dance performance. Let us encourage Kesar with a huge round of applause. तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बनके मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू मेरी आबाद रही तो ऐ वतन वतन मेरी आबाद रही तो ऐ वतन वतन मेरी आबाद रही तो मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी ज़िंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे मेरे बाप हमारी लगा के झूम तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे अरो झूम तिरंगा नाम नहीं, आज़ादी है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का नाम। जिन वीरों ने अपने लहू से तिरंगे की शान लिखी, आज उन्हीं की कुर्बानी को सलाम करने का दिन है। तो तैयार हो जाइए उस प्रस्तुति के लिए जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करेगी बल्कि आपके दिल को झकझोर कर एक सवाल पूछेगी। क्या हम सच में उस आज़ादी की कीमत को समझते हैं? आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हमारे कलाकारों का जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक दमदार अरे रुको, ये कैसी आजादी? क्या इतनी ही थी उनकी कुर्बानी? कुर्बानी किसकी कुर्बानी उन वीरों की जिन्होंने हंस कर अपनी जान गंवाई, जिनकी वजह
से आज हमने ये आज़ादी पाई। 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन लाखों बलिदानों की याद है जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। लेकिन आजादी तो हमें मिल चुकी है, अब हमें क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? यही तो सवाल है। चलो तुम्हें सुनाती हूँ अंग्रेजों की और हमारे भारत की कहानी। अंग्रेजों ने कहा था, ये तुम्हारा देश अब हमारा है, तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, क्योंकि तुम हमारे गुलाम हो। गुलामी? कैसी गुलामी? कैसी गुलामी? वीरों ने कहा है, गुलाम नहीं रहेंगे, हम गुलामी नहीं सहेंगे, आजादी तो लेके रहेंगे। आजादी तो लेके रहेंगे, आजादी तो लेके रहेंगे। जिस उम्र में लोग सपने देखते थे, उस उम्र में उसने आजादी का सपना सच करने की ठानी थी। सीने में जुनून, आंखों में इनकलाब था, हर सांस में बस भारत माँ का नाम था। हंसते हंसते फांसी के फंदे को उसने चूमा था, मूंछों को ताव दे के वो फंदे पे झूला था। आओ मिलो उस वीर जवान से, वीर भगत सिंह था जिसका नाम, हंसते हंसते दी अपनी जान, अमर रहेगा उनका बलिदान। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! सरफरोशी की राहों पर बढ़ते गए, देशभक्ति के दीप जलते गए। बिस्मिल के दिल में देश का अरमान था, भारत को आजाद करना उनका अभियान था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय! फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जिसके नाम में ही आजाद जुड़ा है, वो आजादी के लिए खूब लड़ा है। एक लौ जली फिर भारत में, आग उठी सबके दिल में। अंग्रेजों के आगे कभी झुकेंगे नहीं, आजाद थे आजाद रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। भारत माता की जय! दिल में था देश, आंखों में आजादी का सपना, नेताजी ने भारत को माना था अपना, हिम्मत से अंग्रेजों को ललकारा, देश ने पाया वीरों का सहारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वंदे वंदे। और सुनाओ वीरों की कहानी, हमें बताओ। क्या ऐसी वीरों की गाथाएं और भी आई जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान गंवाई? शौर्य की मिसाल, बलिदान की कहानी, आई फिर रणभूमि में वीरांगना झांसी की रानी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी मेरी आन है, मेरी तलवार मेरी शान है। जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद भी है, तब तक अंग्रेजों के सामने झुकना मेरा अपमान है। अब मुझे यह बात समझ आई कि सेल्फी लेना, स्टेटस डालना या छुट्टी पाना ही असली आज़ादी नहीं है। आज़ादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, उसे हमें हर रोज मनाना चाहिए। उन वीरों के बलिदानों को अपने दिल से कभी ना भुलाना है। सिर्फ फोन पर स्टेटस लगाना या डीपी लगाना देशभक्ति नहीं। देश की जिम्मेदारी समझना, एकता बनाए रखना, सभी के साथ सम्मान का व्यवहार और देश से प्यार, यही है आजादी। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है। तो आओ मिलकर साथ कहे सब वीरों की कुर्बानी, याद रहेगा हिंदुस्तानी। शहीदों का सपना साकार करे, भारत की जय जयकार करे। तो देखा आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा गा कर सुनाओ। तो आप भी हमारे साथ गाइए। सारे जहां से अच्छा हमारे आदरणीय सेक्रेटरी एंड करस्पॉन्डेंट श्रीमती पी ज्योति मधुसूदन राव गारू, अगस्टिन सर, भूपेंद्र रवि सर, विजय शंकर सर, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, शिक्षकों और छात्रगण। 15 अगस्त हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह उन सपनों के साकार होने का दिन है
जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आंखों में देखा था और जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज जब हम एक स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे सदियों का संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियाँ और अटूट देशभक्ति की कहानियाँ छुपी। इस महान संग्राम का बिगुल सन 1857 की पहली क्रांति से बजा था, जिसे हम स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रखी थी और देशवासियों के दिलों में आज़ादी की एक ऐसी अलग जगाई जो अंततः 1947 में जाकर हुई। इसके बाद स्वतंत्रता का यह संग्राम लगातार आगे बढ़ता रहा। हम कैसे भूल सकते हैं उन अनगिनत क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की वेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की राह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आह्वान, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने अदम्य साहस से युवाओं के भीतर देशभक्ति की एक ज्वाला जगाई। चंद्रशेखर आज़ाद का स्वाभिमान और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अखंड भारत का संकल्प, इन सभी अमर सेनानियों के त्याग का ही तो परिणाम है कि आज हमारा तिरंगा आसमान में गर्व से लहरा रहा है। आज के इस पावन अवसर पर हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम इस आज़ादी की सही कीमत समझते हैं? दोस्तों, आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त होना नहीं था। इसका मतलब था एक सशक्त, शिक्षित और एकजुट भारत का निर्माण। आज अगर हम इस आज़ादी को हल्के में ले लेते हैं या अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलते हैं तो ये उन स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान का अनादर होगा। एक विद्यार्थी होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी पढ़ाई और कर्म के प्रति पूर्णतः निष्ठावान रहें। जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर देश की एकता बढ़ाएं, समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। आइए आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने आचरण, अपनी मेहनत और अपने विचारों से भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। हम इस आज़ादी का सम्मान करेंगे और इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मिट्टी की खुशबू, लहू का रंग, हर दिल में बसा है भारत का रंग। आओ मिलकर कसम ये खाए, देश को हरदम आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you, Samyak, for those. Remembering our past should inspire us to create an even brighter future. Our freedom struggle was shaped by men and women who put the nation before themselves. Now, our young performers are going to take us back in time and introduce us to some of these renowned and inspiring heroes. The students of class 1, 2 and 7 are ready with an enactment portraying our freedom fighters. स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। जिस भूमि पर जन्म लिया है उसकी प्रति कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। भारत माता की जय। Good morning everyone. My name is रानी लक्ष्मीबाई। हम लड़ते ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी आज़ादी का उत्तर है। हम लड़ते ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ
भारत माता की जय। Good morning everyone. My name is Sarojini Naidu. Today I am going to speak about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born on 13 February 1879. She was a great poet, freedom fighter and speaker. She worked with Mahatma Gandhi ji in Indian freedom movement. She is known as the Nightingale of India. She worked for women's rights and education. She was the first governor independent India. She believed in equality. Thank you. One of the slogan of Sarojini Naidu. We want deeper sincerity of motive, a great courage in speech, and earnestness in action. Thank you. Good morning, everyone. I am a Mahatma Gandhi. My slogan is, where love is there, God is also there. Thank you. Good morning, everyone. My name is Siddharth. Good morning, everyone. Pandit Jawahar Nehru. I'm first Prime Minister of India. I love roses and children very much. They call me Chacha Nehru. My slogan is Aram Haram Hai. Jai Hind. नमस्कार सभी को। मैं भगत सिंह। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरे आत्मा को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। Good morning everyone. My name is Netaji Subhash Chandra Bose. People love to call me Netaji. My slogan is, give me blood and I'll give you freedom. Jai Hind. Good morning, everyone. My name is Ayaz Fatima. I am studying first B. My school name is the Secunderabad Public School. I am Durgabai Deshmukh. 15th July 1909, 9th May 1981 was an extraordinary Indian freedom fighter, lawyer, social reformer. Thank you. I am Bhagat Singh, a young revolutionary who dreamed of a free and independent India. I strongly believe that freedom is the birthright of every Indian. I fearlessly fought against British rule and inspired many young people to join the freedom struggle. My message to the youth of India is, be brave, stand for justice, and always put your nation before yourself. I may have sacrificed my life, but my dream of a free India will live forever. Inqilab Zindabad. Bharat Mata ki Jai.
కోడికింతల్లాంటి అమరవీరుల్ని తలుచుకుంటూ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర చెడ్డ, సత్తువ ఉరిగితే కొట్టర కొండ. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర చెడ్డ, సత్తువ ఉరిగితే కొట్టర కొండ. చిన్న కొండ కత్తి సుత్తి కింద కొర కొర మనసల్ని కోహడే సిరిగల కోహడే సిరిగల కోహడే ఎల్ల కోహడే मुझे कोई परवाह नहीं, तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा नाचूंगा उसको फितूर है, मैं नाचूंगा नाचूंगा मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है। रंग केसर शूरा रंग सब्ज खिली फुलकारियाँ, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ का, ओ रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। శుభోదయం, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మేము నవభారత ప్రగతి మన చేతుల్లోనే భవిష్యత్తు అనే అంశంపై ఒక రూపకం ప్రదర్శిస్తాం. ఈ రూపకంలోని పాత్రలు లలిత్ మరియు కార్తికేయ యువకులు, శౌర్య స్వాతంత్ర సమర యోధుడు, అలంకృత్ రైతు, సోచిత్ శాస్త్రవేత్త, ధృతి భరతమాత. దేశానికి ఏమైపోతుందో అని నిరాశగా ఆలోచిస్తూ లలిత్ నడుస్తూ ఉంటాడు. నిర్ణయించే అధికారం నీ చేతుల్లో లేకపోతే ఆ జీవితం ఎలా ఉంటుంది? ప్రతి చిన్నదానికి పరాధీనత, బానిసత్వం ఎంత భయంకరమైనదో. ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న ఈ స్వేచ్ఛ, చిరునవ్వు ఉచితంగా వచ్చాయా? ఉచితంగా రాలేదు లలిత్. ఎవరో ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ కాదు ఇది. వేలాది మంది వీరుల యొక్క త్యాగాలతో రాసిన ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంతా చరిత్ర కలిగింది. అవును, కానీ స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్నేళ్లు గడుస్తున్నా భారతదేశం మనకేమిచ్చింది అని అడగడం తప్ప మనం మన భారతదేశానికి ఏమివ్వబోతున్నాం అని ఎంతమంది ప్రశ్నించుకున్నారు? నిజమే లలిత్. యువకుల ఆలోచనలకు సమాధానాలు ఇవ్వడానికి, సూచనలు చెప్పడానికి స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, శాస్త్రవేత్త మరియు రైతు ప్రవేశిస్తారు. సరిగ్గా అడిగారు యువకులారా, మేము రక్త తర్పణ చేసింది కేవలం బ్రిటిష్ వారిని వెళ్ళగొట్టడానికి కాదు, భారతదేశాన్ని స్వయం సమృద్ధిగా నిలబెట్టాలనే ఆశయంతో. ఆశయాన్ని తీర్చాల్సిన బాధ్యత మీదే. అవును స్వామి, ఒకప్పుడు ఆహారం కోసం వేరే దేశాలపై ఆధారపడిన మనం ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తానికి ఆహారం పెట్టే స్థాయికి ఎదిగాము. అంతేకాక చిన్న చిన్న గల్లీలో ఉన్న కూరగాయ కొట్టు నుండి పెద్ద పెద్ద మాల్స్ వరకు ఫోన్ తీసి స్కాన్ చేస్తే చాలు మన యూపీఐ డిజిటల్ విప్లవంతో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాము. నాణ్యానికి ఒకవైపే కాదు, రెండో వైపు కూడా చూడాలి. అంతరిక్షంలోనూ మన జెండా ఎగిరింది. చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగుపెట్టిన ఏకైక దేశం మన భారతదేశం. సూర్యుడి గుట్టు విప్పడానికి ఆదిత్య L1 పంపాం. అత్యల్ప ఖర్చుతో ఏమైనా సాధించవచ్చని ప్రపంచానికి చూపించాం. అబ్బా, ఎంత గొప్ప విజయాలో! ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా మన భారత్ నిలుస్తోంది. విజయాలను చూసి మురిసిపోవడం కాదు యువకులారా, మన ముందున్న సవాళ్ళను కూడా గుర్తించడం నేర్చుకోవాలి. ఆర్థిక అనిశ్చితత్వాలు, భూతాపం పెరగడం, యుద్ధ మేఘాలు, సైబర్ నేరాలు వంటివి నేటి ప్రపంచాన్ని భయపెడుతున్నాయి. వీటిని అధిగమించడానికి మనం 3 సూత్రాలు పాటించాలి. అవి ఏంటో తెలుసుకుందామా? ఐకమత్యం, వసుదైక కుటుంబం అనే సిద్ధాంతంతో ప్రపంచంలో ఎక్కడి యుద్ధాలు జరిగినా శాంతిని కోరే నైతిక బలం మన దేశానికి ఉన్నది. వాతావరణ పరిరక్షణ,
గ్రీన్ ఎనర్జీపై అడుగులు వేయాలి. ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం అంటే మన దేశాన్ని కాపాడుకోవడం. సాంకేతికతను ఆయుధంగా మార్చడం, కృత్రిమ మేధస్సు మరియు అత్యాధునిక సాంకేతికతను పేదరిక నిర్మూలనకు, వ్యవసాయ రంగాభివృద్ధికి వాడుకోవాలి. నేటి యువకుల ఆలోచనను చూస్తూ ఆనందపడుతూ గర్వపడుతూ భరతమాత ప్రవేశిస్తారు. నా ప్రియమైన యువతరమా, సవాలు ఎప్పుడూ భయపెట్టేవి కావు. మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి వచ్చే అవకాశాలు. సాకులు వెతకడం ఆపండి. సృజనాత్మకతతో ముందుకు సాగండి. మీ ఆలోచనలే రేపటి భారతదేశ భవిష్యత్తు. మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు తల్లి. వీరి ఆలోచనలతో వీరు ఎక్కడికో ఎదుగుతారు. మన దేశ రాతను తీర్చిదిద్దుతారు. నవభారత ప్రగతి మన చేతుల్లోనే భవిష్యత్తు. భారత్ మాతాకి జై. జై హింద్. ऊंचा हो इतना इतना बुलंदो
जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो तलवारों की गूंज सुनाई देती है, क्रांतिकारियों के नारे सुनाई देते हैं, लेकिन उन पन्नों के बीच कहीं कहीं एक ऐसी आवाज़ भी दब जाती है जो नारी की थी। वह नारी जिसने अपनी गोद में सिर्फ संतान नहीं, क्रांति को जन्म दिया था। वह नारी जिसने अपने आंचल से आंसू नहीं, आग पोंछी थी, जिसके हाथों में चूड़ियां होते हुए भी तलवार उठाई थी, जिसके सामने अंग्रेजों की बंदूक भी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक संकल्प था, मेरा भारत आज़ाद होगा। तो आइए आज हम याद करते हैं उस रानी को, उस वीरांगना को जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई और ये साबित किया कि वीरांगना भी वीर से कम है। तो चलिए तालियों से स्वागत करते हैं उस वीरांगना का। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी,
मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।